Hello student, welcome to the world of economics and we are on to the fourth chapter of economics and it's globalization and the Indian economy. So before I begin the chapter, as we say, just crack the name of the chapter first, but herein you have a big definition as well as an explanation of the first word, globalization. Simply to understand, I'll say few names and what comes in your mind, keep that in your mind. Let me explain the things and then you will feel, yes, it's easy and interesting. So you have Apple, not the one which we eat, the Apple which is rocking around, Apple iPhone. Then you have Ford, Toyota, Kia, Burger King, Pizza, everything. Just keep this name in mind. Also to add on to the list, we have Tatas, Birlas. Why I am talking about these names? Because these all companies are global multinational brand. Now how is these brands going to help us and how they become part of this chapter is what we are going to learn. Let me introduce you to the chapter. As a student, please keep one thing in mind. In this chapter, specifically the kind of questions you will get will be, you as a consumer, what's the benefit of globalization? You as a company, local company, what is the benefit of globalization? You as a multinational company, what is the benefit of getting a new market? In that kind of way, the questions are framed. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आप कंज्यूमर हो तो आपको क्या फायदा हुआ मल्टीनेशनल कंपनी का? अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी हो तो आपको क्या फायदा हुआ? इंडिया एज एन कंट्री क्या फायदा हुआ? ये सारी चीजें केस स्टडी होंगी एंड बेस्ड ऑन केस स्टडी यू हैव टू आंसर सर्टन क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए ज्यादातर आते हैं आपको. In the introduction part, as the chapter goes, we are into economics, lot of money they are going to talk about. So let's see the first 5-year plan and the amount they are talking about here. 81.1 crore was the government outlay in public sector. That means this much of the money they are spending in 1950 to 51. Look at the amount they have done it in 9th 5-year plan. Now these 5-year plans are nothing but the plan made by our planning commission for the economical development of the company एंड द कंट्री. तो हम डिसाइड करते हैं कि पहला 5-year प्लान जो था वो एग्रीकल्चर के लिए था, दूसरा 5-year प्लान जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था. इस तरीके से प्लानिंग हुई है जिसका आज नाम है ना नीति आयोग. ये उनका काम है. अब एक्सपेंडिचर देखिए कितना है, मतलब इतने पैसे वो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और फिर उतना ज़्यादा हमें रिटर्न्स आएगा. देखिए एवरी गवर्नमेंट everywhere in the world, especially India, they are spending money because they want to eliminate the poverty. They want to reduce the inequality. They want to bring the equality in terms of wages, men, women. Apart from that, all the sectors. इससे क्या होगा? कंट्री डेवलप होगी और वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लाई जो है ग्लोबलाइजेशन की, या जो आजकल है. वी से इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वी वांट टू मेक यू ग्लोबल सिटीजन. तो वो सब कैसे होगा? बात सिंपल सी है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूँ. यू हैव अ रेप्लिका ऑफ अर्थ विच इज नोन एज ग्लोब एंड नाउ व्हेन आई आस्क यू कि वेयर इज अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, यू जस्ट put the finger on the globe and tell me this is where it is North America, this is where there is Canada, Alaska, France, Britain, anywhere you can take me within seconds. Was this possible like 1000 year back? No, it wasn't. तो इतना छोटा कैसे दुनिया हो गया? क्योंकि वो ग्लोब है, वो छोटी है तो छोटा दुनिया हो गया? नहीं, it's all because of trade. Now, before I explain you the current globalization and the role of multinational corporation or multinational companies, let me tell you how this world get globalized and how do multinational companies play a big role. Remember, trade. This is the base of this chapter. Trade is something which is connecting the whole world. Since the day we settled on Indus Valley, in Egypt or in China, we started trading. Now this trade is what connected people. Now the trade, not only goods and services went across the nation, but ideas, ideology and germs, disease, lot of extra things. But then the world was shrinking. धीरे धीरे छोटा हो रहा था दुनिया, वो ट्रेड की वजह से. Currently आज हम देखते हैं कि दुनिया कितनी छोटी हो गई है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे. पर सबसे पहले बात करते हैं एक डेफिनेशन की जो 3 मार्क के लिए आएगा. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. मैं हमेशा नाम के साथ जाता हूँ. मल्टी ज़्यादा, नेशनल अलग अलग कंट्री, कॉरपोरेशन कुछ लोगों ने मिलकर एक शुरू की गई इंस्टीट्यूशन.
यहाँ पर आप बहुत बेहतरीन नाम देख रहे हो जिससे मैंने शुरुआत की थी, पर यहाँ पे कुछ और ऐड कर देते हैं। गूगल है, फाइजर है, टोयोटा है, सोनी है, फिलिप्स है, HCL है, कोको कोला, पेप्सी, एवरीथिंग। ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, विच मीन्स दे हैव देयर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन वन कंट्री, बट द प्रोडक्शन and the sale is across the globe. Now whenever you are gluing to some ad, they do talk about कि we have our branches in 100 countries, we have our branches in 50 countries. So ये इतने expanded जो हैं companies हैं और इन्हें हम कहते हैं multinational companies. Before these come to the picture, the production was organized within the nation. तो जो कुछ हम बनाते थे हमारे देश में ही हम उसे बेचते थे, पर जब से ये मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, व्हेन दे हैव इमर्ज, नाउ द प्रोडक्शन इज डन नॉट ओनली इन वन कंट्री बट इन वेरियस कंट्रीज एंड आई एम कनेक्टेड टू ऑल दीज कंट्रीज. माई प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंटरलिंक्ड. कोई भी चीज़ अगर मैं बना रहा हूँ या प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी जगह पर नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्सपांडेड है इसका प्रोडक्शन. और ये क्यों करते हैं? सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो and they can earn lot of profit. I'll give you an example. USA में वीकली सैलरी होती है. ऑन एन एवरेज कंसिडर कीजिए कि $200 आपकी सैलरी है. $200 आज इंडियन रुपी की वैल्यू क्या है? आप वो वैल्यू ले लीजिए, इंटू 200 कर दीजिए. अब वो 200 अगर वीकली है तो महीने के कितने हो गए आपके? इंटू 4 कर दीजिए. इंडियन जो रुपी है उससे वैल्यू को भी इंटू 4 कर दीजिए. जो नंबर आएगा वो आप देखना कितना बड़ा होगा. क्वेश्चन, क्या उतनी बड़ी सैलरी इंडिया में किसी भी लेबर की है? नहीं है. वो जो फिगर है उतने में आप इंडिया में कई सारे लेबर्स ले आओगे. एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे मूव टू डिफरेंट कंट्रीज वेयर द रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स, प्लीज याद रखिए ये वर्ड, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स are available. And biggest thing, the countries serve as market. India, China, we have cheap labor, we have ample abundant of raw material, whatever you say we have it, and English speaking crowd जो हमें कॉल सेंटर्स के लिए चाहिए. तो हमारे पास सब कुछ है. So the cost of production for these companies is very less here and they can make lot of profit. Almost 60% of the profit they can make. ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है. Now when I come to here, they say कि production across the countries. But obvious, अगर मेरा रिसर्च सेंटर जो है वो न्यूयॉर्क में है तो मेरा कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं दूसरे देश में हो रहा है. When we talk about cell phones, when we talk about cars, see, they have their research center, development center, R&D centers at one place, but they don't make the whole car at that place. Do you think, take an example of car. We all are very much interested into cars. आपको क्या लगता है कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ मर्सिडीज बेंज का, तो मर्सिडीज बेंज के पास रबर की फैक्ट्री है, लेदर की फैक्ट्री है, पेंट की फैक्ट्री है? नहीं है. तो ये सब कहाँ से आएंगे? ये कहीं और से आएंगे जहाँ रबर मिलता है. रबर कहाँ मिलता है? इंडिया में मिलता है, मलेशिया में मिलता है. तो ऐसी कंट्री से ये चीज़ें लेंगे तो रबर की कोई अलग फैक्ट्री होगी, उसका एक अलग रिसर्च डिपार्टमेंट होगा. सो सारी चीज़ें कनेक्ट करके तब जाके उनका प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होता है और उसके बाद वो कार मार्केट में आती है. तो इसे कहते हैं मल्टीनेशनल इंटरलिंकिंग. नाउ व्हाट दे से इज कंट्रीज यूज ट्रेड इन रॉ मटेरियल, फूड स्टफ, फिनिश गुड्स, क्योंकि वही सब ज़्यादा चीज़ें होती थी विद इन अ कंट्री. नाउ व्हेन द MNCs केम, all the economical activities of these countries change, not only within the country but in different countries also, क्योंकि अब मैं उनसे रॉ मटेरियल लूँगा, उन्हें एज अ मार्केट यूज़ करूँगा. Goods and services now been produced globally, as I said, car. Now understand, India is a big market. India, cheap labor is available, skilled and unskilled both. Now USA is developed country. They have R&D centers of most of your multinational companies. आप देखना सारे multinational company वेस्टर्न है, ज़्यादातर, नॉट सारे, सारे वुड बी द राइट वर्ड. तो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो मल्टीनेशनल है, वो अमेरिकन है या यूरोपियन है. तो ये क्या करते हैं, जो कंट्री इनके नज़दीक है वहाँ पे पैकिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल मैक्सिको,
यूक्रेन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो दे आर नॉट डेवलप्ड. सो यहाँ पे पैकिंग होगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ होगा? यूएसए में होगा, जर्मनी में होगा, फ्रांस में होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, कहाँ की कंपनी है. देन प्रोडक्शन कहाँ होगा? इंडिया में, चाइना में. पैकिंग कहाँ करते हैं वो लोग? पैकिंग करेंगे वो लोग फिलीपींस में, मलेशिया में. देन द गुड्स विल रीच अप टू दीज प्लेसेस लाइक मेक्सिको बिकॉज दे आर क्लोज टू मार्केट. Mexico is close to market. What is market? USA is market. Canada is market. Packing is done in Ukraine and all. Why? Because they're close to market. Germany, France, the Western Europe. तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. तो प्रोडक्शन जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज. इंटरलिंकिंग, एक दूसरे से प्रोडक्शन को लिंक करना. तो दूसरी कंट्रीज में ही होंगे. एक जगह पे रिसर्च सेंटर है, दूसरी जगह पे प्रोडक्शन है, तीसरी जगह पे पैकिंग हो रही है. आपको नहीं लगता कि तीनों में एक बेटर कनेक्शन होना चाहिए? अगर कनेक्शन होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, जल्दी होगा और रुकेगा नहीं. जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, सी मास प्रोडक्शन लीड्स टू मास कंजम्पशन. एक बेसिक सी इकोनॉमिकल चीज़ याद रखिए, इकोनॉमिक्स की एक चीज़ याद रखिए. नाउ व्हेन दे से MNC सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट, आई टोल्ड यू मेक्सिको में सेटअप करेंगे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में सेटअप करेंगे क्योंकि वो मार्केट के नज़दीक है. जल्दी से प्रोडक्शन हो जाएगा, सामान आ जाएगा और हम मार्केट को ऑक्यूपाई रखेंगे. आपने देखा होगा ड्यूरिंग द पेंडेमिक व्हेन यू गो टू द स्टोर्स यू वर नॉट एबल टू फाइंड सर्टेन प्रोडक्ट्स. व्हाई? बिकॉज द प्रोडक्शन वाज स्टॉप्ड एंड दे सेड कि दिस प्रोडक्शन और दिस गुड और सर्विस विल रीच अप हियर आफ्टर 3-4 मंथ बिकॉज उनका जो प्रोडक्ट है वो कहीं दूर से आने वाला है और ट्रेड रुकी हुई है. तो इसीलिए जितना नज़दीक होगा उतना जल्दी वो प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाएगा. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग यू ऑर्डर फ्रॉम अमेजन. इफ यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम दीज साइट्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट, व्हाट हैपेंस इज इफ द कंपनी इज हैविंग अ प्रोडक्शन नियर बाय योर सिटी, सो इफ आई एम इन बॉम्बे एंड द स्टोर हाउस इन पुणे, देन आई विल गेट द प्रोडक्ट सून. But then if I'm ordering something which is from the South India, it is in Bangalore, obviously it is going to take some time. तो इसीलिए दिस इज द रीजन दे हैव प्रोडक्शन क्लोज टू देयर मार्केट. मार्केट इज देयर ओन कंट्री. मार्केट मतलब कोई एक मार्केट नहीं है, कोई एक मॉल नहीं है. MNCs might look for the government policies that look after their interest. I am multinational corporation. If I want to enter your country, I want support from your country. I want support from your government. I need tax evasion. I want reduction in taxes. I want some policies which should favor me. हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि सी इफ यू वांट टू कैच अ बिग फिश यू हैव टू पुट अ स्मॉल फिश, देन ओनली दैट बिग फिश विल कम एंड ईट और वो आप ग्रैब कर पाओगे डिपेंडिंग ऑन अपॉर्चुनिटी. बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आए बट दे वर नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू वेरियस रीजंस. नाउ व्हेन दे रियलाइज कि वी नीड टू गो बैक टू इंडिया, नाउ दे आर नॉट गेटिंग स्पेस. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं. Now, MNC set up production jointly with some of the local companies of these countries. हम यहाँ पर हमारे कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं. Now, I am a multinational corporation and you are a local company or take vice versa, जो आपको अच्छा लगे. आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है कारगिल फूड्स. इट्स एन अमेरिकन कंपनी और इंडिया में एक छोटी सी कंपनी थी जिसका नाम था पारेख फूड्स. बट पारेख फूड के पास 4 ऑयल डेपो थे, ऑयल रिफाइनरीज. ना एडिबल ऑयल, आई एम टॉकिंग अबाउट एडिबल ऑयल, नॉट दी पेट्रोलियम थिंग. नाउ वन सिंपल वे, आई जस्ट टुक द स्टेक इन दिस कंपनी पारेख. आई परचेस द पारेख फूड. तो मैं मल्टीनेशनल हूं, मैंने पारेख फूड को खरीद लिया. आज पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन, सारा कुछ कारगिल चलाता है पारेख का. अब क्या फायदा हुआ? फायदा ये है, टुडे Cargill Food is the largest producer of edible oil in the world. 5 million pouches a day. बहुत बड़ा नंबर है. Now, ये कैसे हो गया? जादू कर दिया कारगिल ने? नहीं. I gave you a lot of money which you invested in your machinery. You upgraded the thing. The production increased. What you got? You got a big brand name. You got a new market. Why Cargill did this collaboration? Why Cargill purchased Parekh? Already set market, such a big market India. उन्हें कोई परमिशन लेनी नहीं है. पारेख के पास सारे परमिशंस हैं, उनके पास फैक्ट्री सेटअप है, उनके पास सेटअप मार्केट है. सडनली अगर मैं ब्राज़ील में जाता हूँ, कंपनी ABC एंड आई लॉन्च कंपनी ABC, कौन जानता है ब्राज़ील में मुझे? कोई नहीं जानता. आई हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन एडवर्टाइजमेंट.
मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा. बट ABC कंपनी with XYZ कंपनी ऑफ ब्राजील एंड आई लॉन्च एंड गो देयर, ऑब्वियसली पीपल एटलीस्ट नो XYZ एंड फॉर दैट आई हैव एन सेटअप मार्केट. तो ये मेंटालिटी है इनकी कि लोकल कंपनी के साथ कैसे खरीदो या टाई अप करो. दूसरा भी तरीका है टू रीच इनटू दिस मार्केट. आप एक काम कीजिए, इंडियन कंपनी को ऑर्डर दे दीजिए और लोकल कंपनीज को, मैं बार बार इंडिया का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, आपको ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा. जीन्स, कोई भी बड़ा ब्रांड लीजिए. इंडिया इज अ बिग टेक्सटाइल कंट्री. कॉटन के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं. मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया वॉज अहमदाबाद. सूरत इज अ बिग प्रोडक्शन हाउस ऑफ टेक्सटाइल. कानपुर, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, कोयम्बतूर, इतने बड़े बड़े शहर हैं जहाँ टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है. तो फिर ये जाता कहाँ है सब? हम ही सब पहन लेते हैं? नहीं. आप जो भी बड़ा ब्रांड पहनते हो, आई एम फॉर श्योर, फॉर अ मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ माई नॉलेज, ज़्यादातर वो इंडिया से ही बनते हैं. इट्स जस्ट दैट वो मेड इन इंग्लैंड या फिर पेपे, किलर, ये सारे नाम आ जाते हैं और वो नाम उसका प्राइस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है. होता क्या है? दे ऑर्डर टू अ लोकल कंपनी with a clear instruction that we do not want to compromise on quality of anything. Then if they find, जैसे उन्होंने मार्केट में ऑफर रखी है कि बॉस दिस इज द ऑर्डर आई वांट टू गिव, मुझे कुछ 10,000 जीन्स चाहिए इस टाइप की. अगर मुझे कोई कंपनी जो है इंडियन वो ऑफर देते कि ओके वी आर रेडी टू वर्क फॉर यू, वी विल मेक दिस प्रोडक्शन फॉर यू, वी विल हैव दीज थिंग्स, तो उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी के स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरना होगा. दे नीड टू एक्चुअली एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन सेट अप बाय द मल्टीनेशनल कंपनी कॉर्पोरेशन एंड देन दे कैन हैव द प्रोडक्शन फॉर MNC. Only one big condition, you cannot have your brand name or your name on the product. So if I make this Pepe jeans, what I do is I have to just pack it and send it to America. What they'll do, they'll put that brand Pepe. I'll just send jeans. वो वहाँ पे वो ब्रांड लगा देंगे. आई रिमेंबर वेरी वेल, फीफा एक बॉल आई थी, बड़ी फेमस बॉल है या फिर बड़ी इनफेमस बॉल थी, बड़ा अच्छा नाम था, जाबुलानी. अब इस बॉल के बारे में पता कीजिए आप, यू विल बी सरप्राइज टू नो इट वॉज मेड इन इंडिया. बिकॉज उन्होंने ऑर्डर हमें दिया, हमने वो ऑर्डर लिया, देन इट रीच्ड अप टू द लोवेस्ट लेवल एंड दे मेड दैट बॉल एंड केम टू द मार्केट. मुझे नहीं पता कितना, बट आई नो अ फ्यू पीपल हु वर्क फॉर दिस काइंड ऑफ मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग. They pay 50 rupees to 100 rupees per piece to the worker. Jabulani cost in an open market was 8,000 rupees. I'm talking almost 10-15 year back. This is the difference of multinational brand. तो जो जीन्स हम बनाते हैं at a normal cost of 300 rupees, when it gets the name Woodland, it reaches up to 4,000, 6,000, 10,000 and in lakhs if it is design or designers. तो ये प्रॉफिट है. दिस इज द अमाउंट मल्टीनेशनल कंपनीज टेक एंड दैट्स व्हाई दे आर सो बिग. आई जस्ट वांट टू शेयर वन फैक्ट, वन ऑफ माय फेवरेट. आई रेड समवेयर दैट मल्टीनेशनल कंपनीज आर सो बिग, आई एम टॉकिंग अबाउट Microsoft, they are so big they can buy Peru or Colombia, the two South American countries on today's market rate. आज जो मार्केट में रेट है ना लैंड का, वो ये दोनों कंट्री को खरीद सकते हैं. दैट मच ऑफ द अमाउंट दे हैव एंड यू नो दे रन द गवर्नमेंट, सो दे रन द शो. द मोर द मनी यू हैव, मोर द पावर यू हैव. जितने बड़े होगे, जितने पैसे वाले हो, उतनी बड़ी गाड़ी होगी, उतनी बड़ी गाड़ी होगी तो लोग वैसे देखेंगे. वाई इज दैट एप्पल, IBM, all these big companies so powerful? Because they have the control. Control is in money. Money comes through production, through sales, and they have the production in multinationals, many countries, and many countries serve as a market for them. तो ये आपका है कि मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे प्रोडक्शन को रीच करती हैं. एक चीज और याद रखिए, हमेशा मल्टीनेशनल कंपनीज विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल एज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट, जो हम बाद में पढ़ेंगे. सब अच्छा हो नहीं सकता किसी भी चीज में. So we move ahead and see foreign trade and integration of market. Again similar sort of topic. हमने आया, कंपनी खरीदी, कंपनी खरीदने का प्रोडक्शन किया और बेचा. बट आए कैसे? फर्स्ट वर्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड इज फॉरेन ट्रेड. Trade between the two nations is called foreign trade.
Now, you might have heard the word investment. So the money which you actually invest to buy asset. Asset कुछ भी हो सकता है. It could be land, machinery, permissions. ये सारी चीज़ों पे आपने पैसा खर्च किया, उसको कहते हैं investment. And what is foreign investment? Foreign में जाके इन चीज़ों पे खर्चा किया उसको. ना, foreign investment is the money which we get from foreign to purchase these things. हम कहते हैं ना इस कंपनी के अंदर, इस कंट्री के अंदर इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है इस साल, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड दैट डोमेस्टिक मार्केट. आई एम अ प्रोड्यूसर, लोकल प्रोड्यूसर हूँ, मैं इंडिया की एक छोटी सी कंपनी हूँ, तो माई प्रोडक्शन इज लिमिटेड विद इन माई कंट्री. कंट्री भी बहुत बड़ा होता है. अगर आप लोकल कोई प्रोड्यूसर है किसी एक स्टेट के, तो आप सिर्फ स्टेट में रहते हो. मल्टीनेशनल कंपनी से आपका क्या फायदा हो जाएगा? सो इफ आई गेट कोलैबोरेशन विद देम, इफ दे परचेस मी, इफ दे इन्वेस्ट इन मी, सी आई विल हैव अ बिग ब्रांड विद मी. आई विल हैव एन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट. फ्रॉम एन स्टेट आई विल रीच टू कंट्री, एंड इफ माई गुड लक आई माइट be a multinational corporation someday. I will have an international market open for me. And then there's no looking behind. If you have a good policy makers, then definitely you will scale height. Now ये हो गया फायदा कि आपको एक बहुत बड़ा ब्रांड मिल जाएगा, आप अपने प्रोड्यूस को लोकल मार्केट छोड़ के दूसरे मार्केट में बेचोगे. एज अ कंज्यूमर मुझे क्या फायदा होगा? तो एज एन कंज्यूमर आपको नहीं लगता है कि आपके पास एक फॉरेन ब्रांड आ जाएगा? आपकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आपकी सर्विस बेटर होगी. सी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस इन इंडिया एंड स्पेशली अबाउट सर्टेन कंपनीज. वी नेवर हैड सच गुड सर्विस और such good quality of certain products in early 90s or in 80s. Why I'm talking about early 90s and early 80s? Because that's is the benchmark or the landmark year when the multinational corporations started flooding in India. And there's one big reason for that, जो हमारे चैप्टर का एक हिस्सा है, तो जब वो आएगा तब हम और डिस्कस करेंगे उसके बारे में. Now, when you open the trade, or they are saying with the opening of this trade, goods travel from one market to another. Again the same thing, कि भाई इंटरनेशनली मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो इस मार्केट से उस मार्केट में चीज़ जाएगी. यू गो टू सुपरमार्ट, यू विल फाइंड द थिंग्स विच यू हैव सीन इन यूरोप, एंड यू गो टू यूरोपियन सुपरमार्ट, यू विल फाइंड थिंग्स विच आर देयर इन इंडिया. तो मार्केट इंटरलिंक हो गई, मार्केट कनेक्ट हो गई, और वैरायटी भी मिल गई, क्वालिटी भी मिल गई, नो कॉम्प्रोमाइजेशन. तो मैं एज अ बायर, एज अ कंज्यूमर, आई एम वेरी हैप्पी, डिलाइटेड रेदर देन बीइंग हैप्पी. नाउ सी, प्राइजेज ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स टेंड टू बी सेम. हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. If I am purchasing a good of a big brand, the prices of the brand will almost be same in two different nations. But then आप फिर सोच रहे होगे कि मैंने दुबई से एक आईफोन खरीदा और इंडिया से एक आईफोन खरीदा, बड़ा डिफरेंस था प्राइस में. वो इसलिए है कि जो स्टेट टैक्सेस होते हैं और जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं वो इस प्राइस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट माई बेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम अक्रॉस द ग्लोब. It's logic now, boss. You cannot sell a Mercedes Benz at A price in country B and C price in country A. Possible नहीं है, लोग नहीं खरीदेंगे. उन्हें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों. हम हमेशा सवाल करते हैं ना, दो प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस होंगे, इसका प्राइस इतना क्यों और इसका प्राइस इतना कम क्यों. You know very well, if I compare an iPhone with any other phone in India, you have some features which are there in this phone which cost you not even 1/4 of what iPhone cost. But then there is something called quality which you cannot match with. तो ये प्राइस डिसाइड करेगा आपका. Now, producer in two countries now are closely competing with each other. So if I am coming with a cell phone with so and so features, or if I am coming with a car with so and so features, suddenly my competitor will jump into it and will come up with the similar sort of things. बस ये लाइफ के सारे जगहों पर ऐसा ही होता है. इफ आई एम गोइंग टू अ मूवी, एक साई-फाई मूवी बना दी, बड़ी हिट हो गई, अब देखिएगा दूसरा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो भी एक साई-फाई मूवी बना देगा. अगर एक वॉर की मूवी बना दी, हिस्टोरिकल इवेंट पे मूवी बना दी, हिट हो गई, तो दूसरा तीसरा प्रोड्यूसर भी आप देखोगे कि वो भी ऐसी मूवी बनाएगा. 4 मीटर कॉम्पैक्ट कार इन इंडिया फिलहाल रॉकिंग. दीज 2 years they are actually doing the very very good business, and you have seen how many of them have entered in market now. 4 मीटर कॉम्पैक्ट में यू हैव n number of companies
रीचिंग टू द कंज्यूमर्स। किसका फायदा हो रहा है? हमारा फायदा हो रहा है। वी आर गेटिंग गुड क्वालिटी, वी आर गेटिंग गुड वैरायटी एंड एट अ गुड रेट। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में प्राइजेस कम होंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन द सेल फोन्स केम टू इंडिया। आई रिमेंबर Siemens was the first company, Panasonic was the another one, and Kyocera, it's a German company. They came up with the cell phones and the cell phones were so big. They were literally like walkie talkie. अगर आप पैंट में रख लो तो लिटरली पैंट उतर जाए आपकी, इतने बड़े फोन होते थे। प्राइजेस दे वर वेरी एक्सपेंसिव और उनमें फीचर्स क्या थे? एक अच्छी सी स्क्रीन होगी जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 प्लस 2 और बटन, नथिंग एल्स, नो कैमरा, नथिंग यू कैन डू देयर, बट दे वर एक्सोर्बिटेंटली चार्ज्ड। धीरे धीरे आज आप देखो वो इतने बड़े फोन से इतना बड़ा फोन हो गया है। अब तो ऐसा होता है कि पॉकेट में फोन रख लिया तो हम भूल जाते हैं, और पहले ऐसा होता था कि फोन अगर पॉकेट में रख लिया तो लगता था बदन पे सिर्फ फोन ही है। ये चेंज है टेक्नोलॉजी का, और ये है प्राइस का। जब हमें 5,000 में जो फोन मिलता था आज से 10 साल पहले, आज 5,000 में उससे कई क्वालिटी बेटर फोन मिलते हैं हमें। और कार्स में भी ऐसा ही है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ योर एज, तो रोड पे हमें बस मारुति 800 दिखती थी, नीली काली पीली हरी, बिल्कुल सतरंगी, रेनबो कलर। नाउ इफ आई गो टू क्रॉस अ रोड, आई सी n नंबर ऑफ फॉरेन ब्रांड्स, और उस वक्त इट वॉज आउट ऑफ रीच मारुति 800. नाउ nobody actually goes to buy मारुति 800. Now when I say nobody, yeah people go, but then choice में कहाँ आती है मारुति 800? एकदम नीचे। ये है कमाल आपके प्रोड्यूसर्स का, लोकल एज वेल एज फॉरेन्स का। ये हमारा फायदा है। नुकसान की बात बाद में करेंगे, जितना पॉजिटिव हो उतने पॉजिटिव रहो। गोइंग अहेड टू अ टॉपिक नाउ, द क्वेश्चन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर के आधे पार्ट में वो आपको बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो मज़ेदार है, अच्छा इंटरेस्टिंग है। सिंपल स्टेटमेंट कहता हूँ, इंटरलिंकिंग और रैपिड इंटरलिंकिंग ऑफ द मार्केट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। हम कैसे एक दूसरे की मार्केट को इंटरलिंक करते हैं उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। स्टेटमेंट तो उतनी सी है, फिर इतनी सारी चीज़ें क्या हैं? सो हु प्लेज बिग रोल इन दिस? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन होता है। नाउ हाउ मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी मूव अक्रॉस द कंट्री नाउअडेज। पहले ऐसा होता था, वी यूज्ड टू ट्रेड सर्टेन थिंग्स, but now these goods and services has expanded a lot. You know, India is a IT master. Now there are few big countries who do not have good IT. So हमारे जो इंजीनियर्स हैं, IT इंजीनियर, they work for them. जर्मनी सबसे अच्छा मैकेनिकल वर्क अगर कोई करता है पूरे धरती पे तो वो जर्मनी है, स्पेशली कार्स। नो वन कैन एक्चुअली कॉम्पिटिट विद जर्मन्स व्हेन इट कम्स टू मेक इंजन, बट IT नहीं है उनकी इतनी अच्छी, तो IT के लिए वो हम पे डिपेंडेंट है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हम किसी और पे डिपेंडेंट हैं। तो ये किसके वजह से हो रहा है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की वजह से हो रहा है। नाउ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कैन ऑल्सो एंटर इंडियन मार्केट। नाउ इट वॉज लाइक अर्ली 90s, वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक, यू हैव टू गो आउट, परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट, फ्रॉम दुबई, फ्रॉम लंडन, पेरिस और न्यूयॉर्क, एंड देन यू कम हियर एंड देन यू शो ऑफ, बॉस ये मेरे पास फॉरेन की चीज़ है। और बहुत ज़्यादा शो ऑफ होती थी। ये हमारे टाइम की बात बता रहा हूँ। Currently there's nothing to show off. You go to any of the mall, you will have 10,000 of brands which are available there in the USA or in Europe. तो अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। If you want to tell कि I have purchased this good from Paris, I am definitely telling you, you go to one of the big mall in one of the big metropolitan city, you will find that good there. अब आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। Now our companies have also started investing into other countries. मैंने जो बड़े नाम कहे थे शुरुआत में, सो आई एडेड फ्यू नेम्स, रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला, सो दे हैव बिकम मल्टीनेशनल, इन्फोसिस, सुंदरम, ये बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं। जैसे वो रूल करते हैं हमारी मार्केट को, हमारी कंपनियां रूल करती हैं उनकी मार्केट को। नाउ ग्लोबलाइजेशन में देयर आर लॉट ऑफ थिंग कि हाउ वी रीच अप हियर, एंड देन आई टोल्ड यू ना नेगेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो। सो प्लीज होल्ड योर डाउट्स, कीप स्माइलिंग एंड कीप रिवाइजिंग। आई एम कमिंग सून।